Hey everyone, so one more recruitment notice of National Financial Reporting Authority I'm discussing here in this video. Those who are watching my video for the first time, this is just to let you know that I have shared other vacancies also for chartered accountants, for intermediate, CMA intermediate or CMA. So you can watch those videos. So you can check out my those videos जो SEBI IOCL वगैरह की वैकेंसी I have shared. So you can check out those videos and decide on whether to apply or not. So let's see what this vacancy asks for. So this is a vacancy recruitment notice for post of manager and assistant manager. This vacancy was released on 17 Feb 2020. उसकी जो तब लास्ट डेट थी दैट वाज 15 मई, वो भी एक्सटेंडेड डेट थी. देन उसके बाद करंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये डेट फिर से एक्सटेंड कर दी गई है 15 जून 2020 तक ड्यू टू पेंडेमिक इशू. सो जो डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो भी अब इसके बाद ही होगा, मतलब कि मिड ऑफ द जून के बाद ही होगा. And note that this vacancy is for New Delhi location only because NAFRA has its headquarters in New Delhi only. And the number of posts for manager is 10 and for assistant manager is 8. Now about the salary or pay scale for the post of manager, it's minimum and maximum basic pay plus DA यहाँ पे मेंशन किया गया है. तो मिनिमम बोला है कि 61,829 होगा और मैक्सिमम 1,97,062. इस रेंज के बीच में सैलरी हो सकती है. वो भी बेसिक प्लस DA है. इसके अलावा भी और अलाउंसेस वर्क्स हो सकते हैं जो इसमें इंक्लूड होंगे आपके ग्रॉस इमोल्यूमेंट्स में. एंड फॉर असिस्टेंट मैनेजर जो मिनिमम पे होगा वो 49,516 से लेके 97,800 के बीच में वेरी कर सकता है. एंड आफ्टर सिलेक्शन योर पीरियड ऑफ प्रोबेशन विल बी 2 years फॉर बोथ मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर. दोनों के लिए ही जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो 2 साल का होगा. नाउ अबाउट एज लिमिट, मैक्सिमम एज फॉर अप्लाइंग टू दिस फॉर बोथ मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर दे हैव सेड दैट एज जो है आपकी वो 21 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए और 30 ईयर से कम होनी चाहिए, मतलब बिटवीन 21 एंड 30 ईयर्स होना चाहिए. आई डोंट नो वाई कि यहाँ पे मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के लिए सेम एज मेंशन करी है. और वो एज का जो क्राइटेरिया है, कट ऑफ डेट जो है आपको एज चेक करने की, वो है 29 मार्च 2020 को. अगर आप 30 ईयर से ज़्यादा है तो आई एम सॉरी, यू कांट अप्लाई टू दिस. Now see what are the minimum educational qualification. For the post of manager you have to be a chartered accountant or you can be an MBA in finance और CFA भी हो सकते हैं, या फिर आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और एनी अदर डिसिप्लिन में फ्रॉम कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, देन यू आर एलिजिबल. प्लस देयर इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट दैट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इज 6 years का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं. So for the post of assistant manager, they require a minimum of 2 years of post qualification experience in accounting, auditing, law or bank. And for assistant manager also eligibility criteria in terms of educational qualification is same as for manager. One more very important thing is that they have mentioned in point number E, certificate of experience. So they have said that experience certificate may be self certification in case of self practicing CA along with certificate of practice. That means कि इस जॉब एप्लीकेशन के लिए अगर कोई CA इन प्रैक्टिस है और उनको 2 साल या 6 साल का एक्सपीरियंस है, then they can also apply. So you need not be in a job. Now talking about the selection process for this is that you have to give a written online computer based test. So there will be computer based online test. Now see the details of online examination. So there will be questions based on English reasoning ability, economic, financial and auditing, accounting, that means your sector related. accounting के ऊपर क्वेश्चन, auditing, economics, financials के ऊपर क्वेश्चंस. उसके बाद जनरल लेवल GK का क्वेश्चंस होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर ईच टेस्ट इज मेंशन्ड हियर. एंड उसके साइड मैक्सिमम मार्क्स भी मेंशन्ड है एंड कितने मिनट्स का होगा वो भी. सो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ऑब्वियसली ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, दैट विल बी 70 क्वेश्चंस. एंड यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा ईच. सो आपके जो सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे 70 क्वेश्चंस जो कि 140 मार्क्स के होंगे, उसके लिए आपको 50 मिनट्स दिया जाएगा. एंड ये जो टोटल टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दैट विल बी ऑफ 3 hours. 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें से कि 50 मिनट्स आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और जो रिमेनिंग मिनट्स होंगे, जो रिमेनिंग टाइम पीरियड होगा उसमें आपके जो रीजनिंग,
इंग्लिश, जीके, क्यूए के क्वेश्चंस होंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे गिवन मिनट्स में. सो हर एक टेस्ट, इंग्लिश हो या रीजनिंग हो, सबके लिए अलग अलग ड्यूरेशन मेंशन है. दैट मीन्स कि अगर आपने 35 मिनट्स में इंग्लिश के क्वेश्चंस या आप स्किप करना चाहो, सोचो कि बाद में कर लूँगा, तो ऐसे नहीं होगा. यहाँ पे आपको 35 मिनट्स के अंदर सारे क्वेश्चंस एक बार में ही करने होंगे. आप उसको नेक्स्ट टेस्ट या रीजनिंग का अगर नेक्स्ट है तो आप उसके लिए आप होल्ड नहीं कर सकते कि मैं वो करने के बाद ही करूँगा उसे सॉल्व. एंड नेगेटिव मार्किंग तो ऑब्वियसली होगी ही. दैट विल बी 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, बिकॉज एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है. यहाँ पे जो वेटेज है, अगर रिटन टेस्ट आपका क्लियर हो जाता है अच्छे मार्क्स से, देन आपका जो पीआई के लिए शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा इंटरव्यू के लिए. देन वहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन वेटेज विल बी गिवन टू 85% वेटेज विल बी गिवन टू मार्क्स obtained in written test and 15% for interview. So you have to perform well in written test. अगर written test में अच्छे मार्क्स आ ही गए, then interview अगर थोड़ा सा बेकार भी चला जाता है, then there will also be a possibility of selection. Now see how to apply for this job. You have to go to this website nfra.gov.in. वहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट, टेंडर्स एडवर्टीजमेंट्स के अंदर जाना है. वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक होगा, उसे क्लिक करके जो भी फॉर्म ओपन होगा वो उसे आपको फिल करना है. अपने पोस्ट सेलेक्ट करके मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं. And documents which you will have to attach here: your scanned photo, your signature, your left thumb impression, a handwritten declaration which I have also shared discussed in SEBI की जो रिक्रूटमेंट नोटिस थे उस वीडियो में भी मैंने ये चीज़ आपको बताई है. वैसे जनरली ये सारी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते ही हैं. सो बेटर होगा इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब कि आप इन सब डॉक्यूमेंट्स का एक स्कैन करके सेव कर ले अपने पास, और जब भी वैकेंसी निकले उसमें सीधा आपको अटैच करने की ज़रूरत पड़े. Now about application fees for filling this application form for general category peoples and OBC, it is 600 plus 18% GST, and for SC ST there is no fees for them. So आपके पास 15 जून तक का टाइम है सोचने के लिए कि whether you want to apply for this or not. This is giving an opportunity to those जो प्रैक्टिस में थे, जॉब नहीं कर रहे थे, and now they are thinking for a job. सो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. I have shared all information in this